بسم الله الرحمن الرحيم. علي علي مزر علي 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 مزر علي علي مزر بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور آج شب ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، لہذا تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں. امام حسن علیہ السلام کی 15 ماہ مبارک رمضان 3 ہجری میں ولادت ہوئی، اور جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے چل کر مولائے متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے اور سید کائنات کو ان کے فرزند کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کیا، اور اللہ کے حکم سے پیغمبر اسلام نے امام حسن مجتبی کا نام حسن رکھا. اور پیغمبر ہمیشہ اپنے نواسوں کو بہت پیار کرتے تھے، چاہتے تھے، مانتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ دونوں ہمارے بیٹے امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوں چاہے اٹھے ہوں، بیٹھے ہیں تب بھی امام ہیں، کھڑے ہیں تب بھی امام ہیں. اور امام حسن مجتبی پیغمبر کو بھی بہت چاہتے تھے. پیغمبر نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حسن ہم سے جو مشابہ ہیں سر سے لے کر نصف بدن تک مشابہ ہے، اور حسین نصف بدن سے لے کے قدموں تک مشابہ ہے. اب اس حدیث کی وضاحت تو اس وقت درکار نہیں ہے، ورنہ کسی دوسرے مقام پر میں عرض کروں گا کہ یہ کیوں فرمایا کہ سر سے لے کر نصف بدن تک حسن مجھ سے مشابہ ہے اور نصف حصہ حسین سے مشابہ ہے. بس ایک جملے کے لیے، کیونکہ سلو کرنی تھی امام حسن کو اور سلو ہوتی ہے ہاتھ سے، لہذا فرمایا کہ نصف بدن حسن سے مشابہ ہے، اور جنگ ہوتی ہے قدموں سے، لہذا فرمایا نصف بدن حسین سے مشابہ ہے. امام حسن کا اگر آپ مرتبہ پہچانے، درجہ دیکھیں، عظمت جانیں تو کوئی بیان نہیں کر سکتا امام حسن کی کیا عظمت ہے، امام حسن کا کیا مرتبہ ہے، امام حسین اور حسن کی عظمت کیا ہے. امام حسن علیہ السلام بہت بردبار انسان تھے، با اخلاق انسان تھے. امام حسن کے لیے روایت موجود ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے وضو کرتے تھے تو بدن لرز جاتا تھا. ہمارے لیے ساری چیزیں عبرت ہیں، نصیحتیں ہیں. یعنی کوئی ایک انسان جب وضو کرے تو اللہ کی بارگاہ میں وضو کر رہا ہے تو کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وضو کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. اور سب سے بڑے عابد اپنے زمانے کے امام حسن علیہ السلام تھے. اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد تھے، عبادت پروردگار کرتے تھے. اخلاق کا عالم یہ تھا، اتنے با اخلاق انسان تھے، مہمان نواز انسان تھے امام حسن علیہ السلام. مہمانوں کی بڑی عزت کرتے تھے. کوئی بھی دروازے پہ آ جاتا تھا اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے، کچھ نہ کچھ اسے ضرور عطا کرتے تھے. ہمیشہ
कुछ ना कुछ ज़रूर अता करते थे और कोशिश ये होती थी कि इस तरह से अता करें कि किसी को दिखे नहीं, कोई देख नहीं सके कि मैंने क्या दिया। लोग आते थे, सवाल करते थे और इमाम उसे अता फरमाते थे, लेकिन इस तरह से देते थे कि किसी को नजर नहीं आता था कि इमाम ने क्या दिया। यह क्या हमारे लिए इबरत नहीं है? क्या हमारे लिए नसीहत नहीं है कि अगर हम किसी को कुछ अता करें तो छुपा के अता करें? क्योंकि हमारे इमाम की सीरत है। हमें हमेशा चाहिए कि छुपा के काम करें। कुछ भी किसी को अता करें, किसी साइल को कुछ दे तो इस तरह से दे क्या वो साइल जाने या उसका खुदा जाने और कोई दूसरा न जाने। अज़ीज़ान गिरामी, इतने बाइखलाक इमाम थे कि एक मर्द शामी आया और आने के बाद इमाम का अखलाक पहचाने। अगर हमें और आपको कोई आके गाली दे तो आप उसे खाना खिलाने की दावत नहीं देंगे, आप उसे खाना खिलाने के लिए नहीं कहेंगे आइए दस्तरखान बिछा हुआ खाना खा लीजिए। लेकिन इमाम हसन के अखलाक देखिए। माविया के कहने पर मर्द शामी आया और आने के बाद जो हो सका इमाम को कहा, जितना आ सका उसके जहन में सब कुछ इमाम को कहा। और जब बक के थक गया तो इमाम ने गौर से उसे देखा, कहा भाई लगता है तुम मुसाफिर हो। ये मेरे भाई लगता है तुम भूखे हो। अगर भूखे हो तो खाना खिलाएंगे, अगर मुसाफिर हो तो अपने घर में जगह देंगे, अगर लिबास नहीं तो लिबास अता करेंगे। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? जब ये सारी चीजें इमाम हसन ने उससे कहा, वो गाली बक रहा था। अगर एक दफा इमाम किसी को हुक्म देते थे तो सरकलम हो जाता और वो जहन्नम में चला जाता। लेकिन इमाम तो चिराग हिदायत है, इमाम चाहते इसकी हिदायत हो जाए। जब बक के थक चुका इमाम ने कहा भूखे हो, खाना चाहिए तो खाना खिलाएंगे, मकान नहीं तो मकान देंगे, सवारी नहीं तो सवारी अता करेंगे। बोलो क्या चाहिए? एक दफा उसने गर्दन को उठाया और उठाने के बाद कहा, आज तक मैं आपका और आपके वालिदे माजिद का सबसे बड़ा दुश्मन था और आज के बाद से आपका और आपके वालिदे माजिद का सबसे ज्यादा दोस्त हूं। मुझसे बड़ा कोई दोस्त नजर नहीं आएगा। और इमाम ने कहा कि आज के बाद से सबसे बड़ा मुहिब मैं हूं आपका। इमाम ने अगर उसे कत्ल करा दिया होता तो क्या इमाम का चाहने वाला बन सकता था? कभी नहीं बन पाता। लेकिन इमाम ने उसे गाली का बदला गाली से नहीं दिया, ना, गाली का बदला हुस्न सुलूक से दिया। और पूरी जिंदगी गवाह है इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि पूरी जिंदगी में कभी उन्होंने गाली नहीं की। कोई बता नहीं सकता कि कभी किसी को गलत बात कही हो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने। और इमाम हसन हमेशा यही कहते रहे कि किसी को गलत बात मत करो, होश मत दो, गालियां मत बको। इतने बाइखलाक इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे कि कनीज इमाम के आए और खुशी खुशी इमाम की खिदमत में गुलदस्ता पेश किया। अगर कोई दूसरा होता तो क्या करता? 2-4 रुपया दे देता, 1500 दे देता कि भाई इसने गुलदस्ता दिया है, इसे कुछ अता कर दे। नहीं, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कनीज को आजाद कर दिया। आज तुम्हें हम आजाद करते हैं, और आजाद कर दिया। अज़ीज़ान किराम, आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जायजा लें तो हमेशा हर जगह हुस्न सुलूक, नेकियां नजर आएंगी। पूरी जिंदगी में कोई एक बदी नहीं दिखा सकता। कोई पूरी जिंदगी में इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बदी नहीं दिखा सकता। हमेशा अच्छाई करते थे, हमेशा नेकियां करते थे। एक आया सुलह के बाद और आने के बाद कहने लगा, हम कहते थे मौलाना सुलह मत कीजिएगा, हम कहते थे आपसे सुलह मत कीजिएगा, आप सुलह कर गए, सुलह कर लिया। क्या तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं धोखा खा गया? कहा हाँ मौला, यकीनन आप धोखा खा गए। इमाम हसन ने उससे फौरन कहा,
धोखा खाना बुरी बात नहीं है, किसी को धोखा देना बुरी बात है। या धोखा खाना किसी से बुरी बात नहीं है, बल्कि धोखा देना बुरी बात है। लिहाजा इमाम हसन की जिंदगी से अगर आप नतीजा लें तो कभी किसी को धोखा नहीं देना है, सिले रहम करना है। अगर हमारे पास है, अगर कोई भी हमसे कुछ मांग रहा है, हमें अता करना चाहिए। सीरत इमाम हसन है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत है कि जब भी कोई भी आया कुछ ना कुछ अता किया। किसी ने अगर सवाल किया इमाम हसन से तो ये मुमकिन नहीं था कि उस सवाल का जवाब न देते। पैसे के बारे में सवाल किया तो पैसा दिया, किसी दूसरी चीज के बारे में सवाल किया तो उसका जवाब दिया। इमाम अलैहिस्सलाम का इल्म, इमाम का अखलाक, इमाम का किरदार कोई बयान नहीं कर सकता है। और हमें भी चाहिए कि हम इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत पे चलें। उन्हीं की सीरत जब अपनाएंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों हमारी संवर जाएगी। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आज शब विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, आज ईदी का दिन है। ईदी में हमें पैसा नहीं चाहिए मौला, बल्कि ईदी में अल्लाह हमें ये चाहिए वक्त के इमाम का ज़ुहूर हो जाए और हम उनके नासिरों में शुमार हो जाए। वस्सलाम मज़र मज़र